friends, good morning and have a nice day. And today our topic are the same chapter, that is the human reproduction, and the topic is the gametogenesis. And today know about the gametogenesis and how the gamete is formed and their hormonal control, right? See, what is the gametogenesis? Okay, firstly we see the term what is the gametogenesis. It means the formation and the maturation of the gamete is called the gametogenesis, right? Simply we can say formation of the gamete is called gametogenesis. As we know, two types of gamete, that is the male gamete and another is the female gamete, right? So on the basis of these two gamete, these two processes are occurs to form the two types of gamete. One is the spermatogenesis and other is the oogenesis, right? Gametogenesis are two types, okay? One is the spermatogenesis, right? And another is the oogenesis, right? These are the two processes through which the gamete is formed in the female and in the case of female, right? Spermatogenesis and oogenesis. ठीक है बच्चे? Gametogenesis दो प्रकार के होते हैं, एक spermatogenesis, एक oogenesis, जिसके द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है मेल में और फीमेल में, ठीक है? Firstly, we are going to talk about the spermatogenesis which occurs in male, right? तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, राइट? ओके, नाउ सी द स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? ठीक है. अब व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ठीक है, द प्रोसेस in which the formation and the maturation of the sperm is called the spermatocyte, right? We can simply here the formation plus maturation of sperm, right, is called spermatogenesis. Okay, then in the earlier class, in the male reproductive system class, okay, I talking about the seminiferous tubule, in which contains the two types of cell. One is the germinal cell and another is the Sertoli cells, right? About today I am going to talk about this germinal cells through which the sperm is formed. Okay, now जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या हो गया बच्चे? फॉर्मेशन और मैचुरेशन, जो स्पर्म है वो फॉर्म होना और उसका मैच्योर होना, यही प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है. अब स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ पे है? तो ये होता है सेमनीफेरस टिब्यूल में, जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया हुआ है कि ये सेमनीफेरस टिब्यूल में होता है. और सेमनीफेरस टिब्यूल में कहाँ पे होता है? तो सेमनीफेरस टिब्यूल दो तरह के सेल्स कंटेन करता है, एक जर्मिनल सेल्स, एक सर्टोली सेल्स कंटेन करता है. तो जो जर्मिनल सेल्स है ना बच्चे, यही जर्मिनल सेल्स फर्दर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, राइट? इसी जर्मिनल सेल में पीजीसी होता है, यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है, राइट? पीजीसी, दैट इज द प्राइमोर्डियल जर्म सेल. And through this primordial germ cells, both the gamete, that is the male gamete and the female gamete, are formed from this primordial germ cell. Right now, these are the primordial germ cell through which the sperm and ova is formed. दोनों चीज यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सेमनीफेरस टिब्यूल में ओवा बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं. ये फीमेल के केस में भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं. जब हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे तो उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, राइट? यहाँ पे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं. दैट्स व्हाई हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्पर्म, राइट? तो ये यहाँ से पीजीएस सेल्स समझ में आ गया, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जो कि जर्मिनल सेल्स कहलाता है, ठीक है? यहीं से स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है, राइट? जो ये बच्चे प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ना,
ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं ये derived from the extra embryonic mesoderm and it's gonadial in origin. Okay, it's extra embryonic mesoderm, right? It is derived from the extra embryonic mesoderm, right? And it is gonadial in origin, right? Gonadial in origin. Okay, PGS cell, primordial germ cell, form this sperm, and these primordial germ cells are derived from the extra embryonic mesoderm. Okay, and it is gonadial in origin, extra gonadial in origin, right? Now see the next steps, that is in explaining the process spermatogenesis. Right, this spermatogenesis completes in 4 stages which are represented here, right? Okay. Now see, it's complete in 4 steps, 4 phases. ठीक है, पहला फेज डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, राइट। दूसरा फेज ग्रोथ फेज, तीसरा फेज मैचुरेशन फेज, and the last phase is the spermiogenesis or spermatogenesis phase. Okay, spermiogenesis phase, right? These are the 4 phases in which this process, this spermatogenesis process completes, right? See these 4 phases, how the spermatogenesis process completes in the following 4 phases with the help of diagram, right? These are the primordial germ cell, right? These are the primordial germ cell which are present where? Which are present in the seminiferous tubule, where we say these are the germinal cells. Okay, these are the germinal cells, right? From these germinal cells, it is the primordial germinal cell, so many spermatogonia is formed. Okay, बहुत सारे जो है ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल है, ठीक है बच्चे, ये हो गए प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है, इस प्राइमोडियल जर्म सेल से बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होगा इस प्राइमोडियल जर्म सेल में, और जिसके कारण बहुत सारे जो है वो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा जिसके कारण बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ठीक है, तो लीजिए बन गए स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, जो कि डिप्लॉइड होंगे, 2n नंबर होंगे, एंड इट कंटेन्स द क्रोमोसोम X and Y each primordial cell. Okay, 22, 44 plus X, Y. Okay, 46 chromosome, right? Now each spermatogonia diploid, जितने भी स्पर्मेटोगोनिया प्राइमोडियल जर्म से माइटोटिक डिवीजन करने के बाद बनेंगे वो सभी डिप्लॉइड होंगे, राइट? तो ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया।
आगे क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये यहाँ तक क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन है, राइट। यहाँ तक का जो फेज हुआ दैट इज द डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन फेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट फेज दैट इज द ग्रोथ फेज, राइट। अब हम लोग इस जो पूरा स्पर्मेटोगोनिया है इसमें से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया में, यहाँ पे जो मैं डायग्राम खेल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसमें से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, राइट। एक जो है वो ग्रोथ करके क्या होगा कि एक ग्रोथ करके जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा। क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ठीक है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यानी कि यहां तक का जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, और आगे में मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड्स ऑल आर कंसीडर्ड इन द ग्रोथ फेज, ठीक है। देयर आर अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, ये भी जो होगा ना ये भी डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। अब मियोसिस फर्स्ट होने से क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इट कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये जो है मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या होगा कि दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, राइट बच्चे। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है, अब डिवीजन होगा दैट इज द मियोसिस सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा इसके बाद, मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। अब मियोसिस सेकेंड से क्या होगा कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये 4 स्पर्मेटिड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे, 4 स्पर्मेटिड बनाएगा। इस तरीके से ये बन गया स्पर्मेटिड, ठीक है। अब यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ ना बच्चे, ये यहाँ से लेकर के पूरा होल मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ये पूरा ग्रोथ फेज हुआ, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मैचुरेशन फेज, ठीक है। तो व्हेन स्पर्मेटिड कन्वर्ट्स इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड इट्स बिकम मैच्योर, दिस आर द मैचुरेशन फेज। राइट नाउ द spermatids convert into a spermatozoa, okay, like this, okay। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 स्पर्म के फॉर्मेशन हुए, दैट इज द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। तो इस तरीके से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, मैच्योर होता है, एंड आफ्टर दे ऑब्टेन द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज। ओके, नाउ ये जो है एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है जिसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और यहाँ पे ये भी डिप्लॉइड्स होंगे। जो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया है इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे डिप्लॉइड्स होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ये भी जो होंगे ना बच्चे, ये भी होंगे 44 प्लस XY, ठीक है। बट यहाँ पे ये डिफरेंशिएट किए, चूंकि मियोसिस फर्स्ट हुआ तो यहाँ पे ये हो जाएगा 22 प्लस X एंड ये हो जाएगा 22 प्लस Y, ठीक है बच्चे। अब 22 प्लस X से जितने भी स्पर्मेटिड्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो 22 प्लस X एंड 22 प्लस X, ठीक है। और ये जो है ये 22 प्लस
y 22 प्लस y, ठीक है, इस तरीके से ये होंगे, राइट। तो देखिए इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन मेल कि द चाइल्ड आइदर बी मेल और आइदर बी फीमेल, राइट। तो ये हो गया जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस फर्स्ट हुआ, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस सेकेंड हुआ, जिससे स्पर्मेटिड बना। आफ्टर दे कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटिड एंड इट्स कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ, राइट। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं, हाउ द स्पर्मेटिड मैच्योर इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, एंड आफ्टर द कंप्लीट द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, राइट। लेट्स सी। आफ्टर दिस, इसके बाद का जो प्रोसेस है, क्या चेंजेज आएंगे ड्यूरिंग मैच्योरेशन टाइम ऑफ द स्पर्मेटिड, क्या क्या चेंजेज आएंगे, राइट। ओके, लुक सी हियर, these are the structures of the head which contains a nucleus, and this nucleus are compact, and above these regions these are the acrosome, right। ये हो गया एक्रोसोम, ठीक है। नाउ here it is covered with the these like structures, here it is the neck region, okay, and it is the middle region, and it is the tail region, right। These are the structure of the sperm, okay। देखिए क्या चेंजेज होगा, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ इस तरीके से बना, बट जो यहाँ पे है ना बच्चे, ये मोटाइल नहीं है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है मैच्योर होने की तरफ, ताकि दे ऑब्टेन द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवा, ओके। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स, इसमें बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर्स है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, दे कन्वर्ट इनटू फ्रॉम नॉन मोटाइल टू मोटाइल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है बच्चे, ये हो गया हेड वाला पोर्शन, ठीक है। ये हो गया नेक वाला पोर्शन, ये हो गया मिडिल पोर्शन, ये हो गया टेल पोर्शन, राइट बच्चे, ये हो गया टेल। अब हेड क्या कंटेंट करती है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना आपके नीट के लिए, वो मैं सब एक जगह पे दे रही ताकि रिवीजन के टाइम आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हेड रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे ये कंटेंट करता है न्यूक्लियस, ठीक है बच्चे, ये न्यूक्लियस कंटेंट करेगा। ये है एक्रोसोम, एक्रोसोम। अब एक्रोसोम क्या कंटेंट करेगा, तो एक्रोसोम इज मॉडिफिकेशन ऑफ द गोल्गी बॉडी। जो गोल्गी बॉडी है ना बच्चे, वही मॉडिफाई करके क्या बनाए, एक्रोसोम। तो ये गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, मेड अप ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है। अब एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, क्या कंटेंट करता है, तो एक्रोसोम है ना बच्चे, ये एंजाइम्स कंटेंट करता है। कौन कौन से, तो लाइसिन और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये दो एंजाइम कंटेंट करता है, राइट। एक लाइसिन, दूसरा हाइड्रोलाइटिक, ठीक है, क्लियर है। तो एक्रोसोम लाइसिन और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेंट करता है, राइट। अब न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, हेड वाले रीजन में। अब हम आते हैं नेक वाले रीजन में। तो नेक वाले रीजन में जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, ये हो जाएगा एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, इट हैज इन फर्स्ट क्लीवेज, ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल,
help in first cleavage. Helps in first cleavage, right? Another is the distal centriole. डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। अब डिस्टल सेंट्रियोल क्या है? तो ये टेल फिलामेंट यहीं से एराइज करेगा, ओके। एराइजेस टेल फिलामेंट, राइट, एराइजेस टेल फिलामेंट। तो ये हो गया neck portion contains the proximal centriole and the distal centriole, where the proximal centriole helps in the first cleavage, that and distal centriole from this centriole tail filament arises. Okay, now see that these are the tail filament, right, like this. These are the tail filament. Okay, now middle portion contains what? Middle portion contains a spiral mitochondria, right? Here, these are the spiral mitochondria. राइट बच्चे, यहाँ पे देखिए इस तरह से स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया ये कंटेन करेगा। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आपके आएंगे ना वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसान होगा। इस तरीके से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया ये कंटेन करेगा मिडिल पीस। ये आपके क्वेश्चन आता है कि मिडिल पीस पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में आपके दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन कर रहा है and it contains a spiral mitochondria which number is 25 to 30. कितना? तो 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है, ठीक है। 30 माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है, जिसे कहते हैं नी बेन कर्व, यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं नी बेन कर्व, ठीक है। ये चीजें बच्चे आपको याद रखना है, तो एक्स्ट्रा नीड से पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जिसका नंबर 25 से 30 होगा, और इसको क्या कहेंगे? नी बेन कर्व कहेंगे। अब जो और एक्स्ट्रा चीजें हैं वो जान लेते हैं जो आपके पूछे जाते हैं नीट वगैरह में, नीट में, एम्स वगैरह के एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं। तो द स्पीड ऑफ द sperm in the female genital tract, that is the 1.5 to 3 mm per minute, right? जो स्पीड होता है स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाने का, वो होता है 1.5 to 3 mm per minute, right? जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आएंगे, द स्पीड ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज, ऑप्शन आपको दिए रहेंगे जो कि आंसर होगा ये, ठीक है, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि जो है स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच गया, बट द ड्यूरेशन ऑफ द स्पर्म रीच्ड एट द फर्टिलाइजेशन साइट इज 30 मिनट। फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 30 मिनट। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है, 30 मिनट, राइट, ठीक है। ये हो गया स्पीड ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। बट ये क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंचने में कितना समय लगता है, राइट, ओके बच्चे। तो फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंचने में कितना समय लगता है, दैट इज द 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड
with the sheath, the posterior part is covering with the sheath which is called a manchete. ये सब टर्म जो बता रही हूँ ना बच्चे, ये बिल्कुल एज इट इज आता है, ठीक है। तो आप एक बार हमारे लेक्चर को अगर देख रहे हैं तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जो अभी 2020 में देने वाले हैं और जो 2021 में देने वाले हैं। इट इज बेस्ड फॉर ऑल्सो, ओके, दैट स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, ओके। तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्पर्म एंड द मैच्योरेशन टाइम्स। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन टाइम हाउ the spermatozoa converts into spermatids convert into a spermatozoa and how it's matured. So many changes occurs in during this maturation phase. That is, their structure become compact and head region contains a nucleus. That is the acrosome region, which above the head region, which are made up of the Golgi body and which contains the enzyme, that is the lysine and hydrolytic enzyme, right? And the neck portion contains the proximal centriole and the distal centriole. ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है proximal centriole कहाँ है, तो हेड से जस्ट नीचे, और distal centriole कहाँ है, तो मिडिल पोर्शन से जस्ट ऊपर, राइट। तो मिडिल पोर्शन contains a spiral mitochondria whose number is 25 to 30 mitochondria and it is called a Niemann-Kern. And the posterior region of the sperm is surrounded by a sheath which is called a manchete, okay. Now we see the hormonal control of the spermatogenesis, right बच्चे। चलिए हम लोग देखते हैं अब। चलिए हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल। स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट बच्चे, ठीक है, देखते हैं, ओके। देखिए जो भी चीजें रेगुलेट हो रही है वो हाइपोथैलेमस से हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस तो ब्रेन में होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है बच्चे। जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीज करता है GnRH, दैट इज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, दैट रिलीज द GnRH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड इट एक्टिवेट द anterior lobe of pituitary glands, okay, it activate the anterior lobe of pituitary, anterior lobe of pituitary, ठीक है, राइट। तो हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH वहां से एक्टिवेट होगा, विच स्टिमुलेट किसको, तो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। जब एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पे दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज द सर्टोली सेल्स, ठीक है, सॉरी, वन इज द follicle stimulating cells and another is the luteinizing cells or intracell, okay, ICSH stimulating hormone, intracell stimulating hormone, ठीक है, cells are present which activate, which stimulate and release the FSH and the ICHs in case of male and in case of female LH, okay. Let's see. From here, FSH, that is the follicle stimulating hormone, and LH or ICS, that is the intracellular stimulating hormone, okay, is released due to stimulation of the anterior lobe of pituitary glands on the follicle stimulating cell and luteinizing cell or IC cells, okay,
तरीके से जो एंटरलोब पिट्यूटरी है वो यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल होंगे, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल होंगे, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग सेल होंगे, तो इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एक्टिवेट करने से क्या होगा कि ये स्टिमुलेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के कारण एक्टिवेट होने से ये जो हार्मोन है वो रिलीज होगा, दैट इज द FSH एंड द LH या ICSH, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज होगा। अब ये हार्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा, ठीक है, FSH, ठीक है, तो FSH जो है इट इज स्टिमुलेटेड बाय सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल जो है वो एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, ठीक है, ड्यू टू FSH, ठीक है। अब इसके फंक्शन हम फर्दर पढ़ते हैं। नाउ लेट्स हियर, अब ये क्या करेगा, तो ये जो है इट एक्टिवेट द लीडिंग सेल, स्टिमुलेट द लीडिंग सेल, ओके, इट्स एक्टिवेट द लीडिंग सेल, क्या करेगा, लीडिंग सेल को एक्टिवेट करेगा। तो जैसे ही लीडिंग सेल एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, then it's release the androgen hormone, that is the testosterone, right? अब यहाँ पे ये जब एक्टिवेट होगा ना तो क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन। अब इस टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है बच्चे, तो ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन का, तो ये सेक्स कैरेक्टर अपीयर करने में मदद करेगा, क्योंकि इसी के कारण जो है बहुत सारे कैरेक्टर जो मेल में अपीयर होते हैं, वो जैसे बियर्ड होना, हार्ड वॉइस होना, ठीक है, पीपी के हेयर होना, ठीक है, आर्मपिट हेयर ग्रो करना, ठीक है, चेस्ट हेयर, तो इन सभी चीजें जो हार्मोन, इसी हार्मोन से रेगुलेट होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, लीडिंग सेल किसको स्टिमुलेट हुआ किया, लीडिंग सेल स्टिमुलेट होकर क्या रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने के प्रोसेस में भागीदारी निभाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा, ये सेक्स कैरेक्टर को अपीयर करेगा, ठीक है। अब सर्टोली सेल्स का क्या काम करता है, तो सर्टोली सेल्स का भी काम है स्पर्मेटोजेनेसिस में, बिकॉज जिस किसी चीज का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, एंड दिस न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द सर्टोली सेल्स। हमने पहले ही क्लास में पढ़ाया हुआ है कि सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, और ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। एंड वन थिंग और ये कि और भी मैंने बहुत सारे फंक्शंस बताए हैं इसके, कि जो है ये एंटी मुलेरियन फैक्टर भी जनरेट करता है, जिसके कारण जो फीमेल में जैसे फेलोपियन ट्यूब्स होता है उस तरह का डेवलपमेंट मेल में ना हो जाए। दूसरी बात कि ये एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये सीक्रेट करता है, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये किसी छात्र नेता का वो नहीं है, एबीपी नहीं है, यहाँ पे एबीपी है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो सीक्रेट करता है ना बच्चे, तो क्या होता है इससे कि इट हेल्प्स टू कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। तो ये क्या करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये टेस्टोस्टेरोन को, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल होता कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां पे होता है ना। देखिए ये हो गया आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अंदर वाला पार्ट, ये हो गया सर्टोली सेल्स, ये हो गया जर्मिनल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपका लीडिंग सेल होता है, तो यहीं पे ना टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा, बट टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये जो सर्टोली सेल्स है, ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है, ये यहाँ से यहाँ लाने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है, राइट। तो ये चीजें हमने देखा, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या हो गया सर्टोली सेल्स का, कि ये इनहिबिन सीक्रेट करता है, इनहिबिन सीक्रेट करता है, राइट, इनहिबिन। अब इनहिबिन का क्या काम है, तो इनहिबिन क्या करेगा कि जब सर्टोली सेल्स
से ज्यादा सिक्रीट होने लगेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या न्यूट्रिशंस, जो कि स्पर्मेटोगोनिया के लिए हार्मफुल है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, राइट। तो जैसे ही ये ज्यादा यहाँ पे सिक्रीट होने लगेगा, वैसे ही ये इनहिबिन सिक्रीट करता है, जो क्या करेगा कि जो हाई एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है और हाइपोथैलेमस है, उसको नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक देगा, राइट। अब हम आते हैं दूसरी ओर। अब लड़के से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा, टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे भी केस में डिजीज हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई कंट्रोल इसका होना जरूरी है। तो अगर जैसे ही ज्यादा ये सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी क्या करेगा? यहाँ से भी नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को। क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, राइट, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हार्मोनल कंट्रोल। क्या हुआ? देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं, हाइपोथैलेमस GnRH को एक्टिवेट किया एंड उसके बाद GnRH के एक्टिवेट होने के कारण एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो एक्टिवेट हुआ एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ कि ये स्टिमुलेट किया FS सेल को, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल को और लुटेनाइजिंग सेल को, जिसके कारण जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल है वो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है और जो LH है वो क्या सिक्रीट करेगा? LH या फिर ICSH, ठीक है, लुटेनाइजिंग हार्मोन और इंट्रासेलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब FSH जो है वो सर्टोली सेल्स, ठीक है, FSH जो है वो सर्टोली सेल को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि ABP तुम जो है वो सिक्रीट करो, ठीक है। जब ABP अगर ज्यादा हो जाता है तो तुम इनहिबिन सिक्रीट करो। इस तरह का ये एक्टिवेट स्टिमुलेशन देता है कि तुम जो है ABP स्टिमुलेट हो जाओ, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की अनिवार्यता है, इंपॉर्टेंट है, ओके, नीड है। उसके बाद LH जो है वो लिटिंग सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो तुम जो है टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करो। तो ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ से सिक्रेट करता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, और दूसरा है सेक्स कैरेक्टर में हेल्प करता है। तो अब सर्टोरी सेल्स ABP सिक्रेट करेगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा। जब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ज्यादा सिक्रेट होने लगेगा तब ये इनहिबिन सिक्रेट करेगा, जो कि नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर लोब पिट्यूटरी में कि अब तुम किसी को एक्टिवेट मत करो, ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सिक्रेट हो पाए, जिससे कुछ डिसऑर्डर हो पाए, ठीक है। तो अब इसको मना करेगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम बंद हो जाओ, अब मत सिक्रेट करो, अब किसी चीज को स्टिमुलेट मत करो। लाइक सेम इधर भी टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा होगा तो ये भी क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, राइट। दिस आर द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। And now in the next class we are talking about the oogenesis and the hormonal control of the oogenesis, okay, ठीक है। और आप लोग सेफ रहिए, लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलिए, ठीक है, और जितना हो सके दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हमेशा साबुन से जब भी बाहर से आए तो साबुन से हाथ धोते रहिए, ठीक है। और बाहर से आने से पहले आप सब कुछ एक अपना सेपरेट रूम बना के रखें, जिसमें कि अपने सभी जो क्लॉथ्स हैं उसको चेंज करके ही आप अंदर आए, साबुन से हाथ धो करके आए, ताकि वो किसी से स्प्रेड ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि अभी जो है इसकी संख्या बढ़ रही है पेशेंट की, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। थैंक यू।